नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेकर आए हैं लिटरेरी थ्योरी के कुछ चीज़ें और आज डेफिनेटली बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और आज दो टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इलाबोरेटिव और मैं कह सकती हूँ कि उतना ज़्यादा विस्तारित या फिर इन डिटेल ज़्यादा देख पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दो चार पॉइंट और दो चार व्यक्तित्व की नेम ही आपको याद रखनी है, इसीलिए दोनों को मिलजुल के कहूँगी हिंदी बंगाली में। और नेक्स्ट टाइम हम डिकॉन्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ों से बातें करेंगे। और सो ये मैं बंगाली में इंट्रोड्यूस करवा के आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। सो डू नॉट स्किप दिस ভিডিও। তো আজকে আমরা আলোচনা করব লিটারেরি থিওরির যে শুরু করেছিলাম, লিস্ট দিয়েছিলাম এক একটা করে। তো শুরুতে আজকে দুটো স্কুল নিয়ে এসেছি, কেমব্রিজ স্কুল আর হচ্ছে শিকাগো। আর এখানে খুব বেশি জিনিস মনে রাখতে হবে না, শুধু একটু বেসিক জিনিস মনে রাখতে হবে যেটা আর কি এটার সাথে যুক্ত এবং কিভাবে আমরা পড়বো। আর তার সাথে দু চারজন ব্যক্তিত্বের নাম মনে রাখতে হবে, আর কিছু নয়। তো অবশ্যই আমরা তার জন্য বেঙ্গলি আর হিন্দি, বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে বলবো আগে পিছিয়ে করে। তোমরা বা আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো দেখে নেবেন, শুনে নেবেন, পড়ে নেবেন, বুঝে নেবেন প্লিজ। আর অবশ্যই সঙ্গে জুড়ে থাকুন। প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে দেখুন এসপি লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। शुरू करा जाक। तो आज के हम प्रथम बांग्लाई बोली, पहले हम बंगाली में बोलते हैं फिर हिंदी में, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एसपी लिटरेचर। আমাদের টার্গেট ইউজিসি নেট জেআরএফ জুন 2025 পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার স্কুলস অফ ইন্টারপ্রিটেশন। প্রথমেই আমরা পাচ্ছি কেমব্রিজ স্কুল 1920s to 1930s। এখানে কি পড়তে হবে? এ গ্রুপ স্কলার্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি। মানে একটা স্কলার মানে কি, যারা অনেকটা আমরা কি বলে থাকি যে স্কলারলি মানে বেশ বিজ্ঞবান ব্যক্তিত্ব তাদেরকে বলে থাকি। তো অনেক সব সেই সাবজেক্ট বা সেই বিষয়ে অনেকটা ওনাদের দক্ষতা রয়েছে, স্কিলস রয়েছে, ওনাদের অনেকটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, নলেজ রয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, ঠিক আছে। তো সেই যে একটা গ্রুপ দেখতে পাই যেটা কেমব্রিজ স্কুলের সাথে যুক্ত, এক নাম্বার। দ্বিতীয় নাম্বার, নোন ফর দেয়ার রিগোরাস অ্যান্ড অফেন পলিমিক্যাল অ্যাপ্রোচ। ওনাদের কিছু একটা রিগোরাস এবং পলিমিক্যাল একটা অ্যাপ্রোচ আছে, যেটা কি করছে ওই অ্যাপ্রোচটা টু টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ক্লোজ এক্সামিনেশন অফ লিটারি ওয়ার্কস। টেক্সচুয়াল এটা কি করছে? টেক্সট মানে কি পাঠ্য, সেই টেক্সটের অ্যানালিসিস করছে আর ক্লোজ এক্সামিনেশন অফ লিটারি ওয়ার্কস। লিটারি ওয়ার্কস আমরা কোনগুলো বলবো? ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কোলরিজ, বাইরন, আদার্স, ক্রিটিক টি.এস. ইলিয়ট, ভার্জিনিয়া উলফ, তারপর আরও অনেক 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 ম্যাথু আর্নল্ড, তারপর হচ্ছে যাকে যাকে আমরা পড়ছি লিটারেরি থিওরিস্ট হিসেবে বা ক্রিটিকদের পড়ছি, ওনাদের লেখাগুলোকে আমরা বলে থাকি লিটারেরি ওয়ার্কস। তো আমরা ডেফিনেটলি লিটারেরি ওয়ার্কস মানে শুধু যে কি বলে হচ্ছে এই যে থিওরি ক্রিটিসিজম তা না, আদার্স ওয়ার্ককেও আমরা একটা টেক্সটকেও লিটারেরি ওয়ার্ক ডেফিনেটলি বলতে পারি। কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলতে পারি সেটাও বোঝার বিষয় আছে। আর কি ফিগার্স মনে রাখতে হবে কি? এফআর লিভিস, কিউডি লিভিস অ্যান্ড উইলিয়াম এমসন। তারপর কি? ওয়ার ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন শেপিং দ্য নিউ ক্রিটিসিজম। তারা কিন্তু নিউ ক্রিটিসিজম মুভমেন্টকে শেপ করতে একটা বেশ ভালো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা আলোচনা করছি কেমব্রিজ স্কুল, কিন্তু চলে এলো নিউ ক্রিটিসিজম। কেন? নিউ ক্রিটিসিজমকে আবার আলাদা করে কিন্তু আমরা পড়বো লিটারেরি থিওরিতে। ওকে, লিটারেরি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত একে অপরের সাথে, এবং কেন কীভাবে সেটাও আলোচনা করা আছে এসপি লিটারেচারের অনেকদিন আগের ভিডিওতে, 10 মাস, 1 বছর বা 8 মাস আগের ভিডিওতে। উইচ এমফাসাইজড ক্লোজ রিডিং অ্যান্ড দি ইম্পর্টেন্স অফ দ্য টেক্সট ইটসেলফ। নিউ ক্রিটিসিজম কী করছে? জোর দিচ্ছে ক্লোজ রিডিং। ক্লোজ মানে কাছাকাছি এসে রিডিং। কোন কাছাকাছি? টেক্সটের কাছে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অ্যানালিসিস করা, বিশ্লেষণ করা, ঠিক আছে। এবং সেই টেক্সটার কি গুরুত্ব রয়েছে, টেক্সটটা নিজেই যে নিজে একটা খুব অর্থবহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেটা বোঝার কাজ করছে নিউ ক্রিটিসিজম, ঠিক আছে। আর নিউ ক্রিটিসিজমের ক্লোজ রিডিংয়ের সাথে যুক্ত। আর এখানে আমরা কেমব্রিজ স্কুলের যে গ্রুপ অফ স্কলারদের দেখতে পাচ্ছি, ওনারাও কিন্তু এই বিষয়টাকেই এমফাসিস বা জোর দিচ্ছেন, বা ওনারাও এই বিষয়টা নিয়েই কাজ করছেন, সেটা হলো টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস অ্যান্ড দ্য ক্লোজ এক্সামিনেশন অফ লিটারেরি ওয়ার্কস। অ্যান্ড লিটারেরি ওয়ার্ক, হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ নট জাস্ট আ ওয়ার্ক অফ লিটারেরি
literary theory or criticism, but also a text or a poetry. You can say literary work মানে যে শুধু একটা theory মানে TSE later tradition and individual talent, this is a literary work. Definitely this is a literary work, but it does not mean that any kind of poetry of Shelley, Keats, Byron, or any kind of novel, any kind of drama, play, or any kind of thing, short stories are not literary works. These are also literary works, but you need to study it in a close approach. তো তোমাদেরকে ক্লোজ মানে কোন ক্লোজ টেক্সটটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে হয়, এটা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, ঠিক আছে? তো লিটারি ওয়ার্ক নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অবশ্যই আরও অনেক কিছু বলবো, বোঝাবো, কারণ প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে এগুলো নিয়ে ডিল করতে হবে, যেহেতু আমরা আগামী দিনে ডিকনস্ট্রাকশন, স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, আদার্স এগুলো পড়বো। তো নেক্সট হলো ক্লোজ রিডিংটা যখন এলো, তো আমি একটু ক্লোজ রিডিং নিয়ে একটু কথা বলে রেখেছি। দ্য কেমব্রিজ স্কুল প্লেসড আ স্ট্রং এমফাসিস অন ক্লোজ রিডিং। কেমব্রিজ স্কুল খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এই ক্লোজ রিডিংয়ের উপর। মেটিকুলাসলি অ্যানালাইজিং দ্য টেক্সট স্ট্রাকচার, মানে একটা টেক্সটের একটা পাঠ্য, সেটা কবিতা হতে পারে, গদ্য হতে পারে, নভেল হতে পারে, শর্ট স্টোরি হতে পারে, বা কোনো লিটারি মানে এসে হতে পারে, বা লিটারি ওয়ার্ক হতে পারে। সেখানে কি টেক্সটের স্ট্রাকচারকে, ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যান্ড ইমাজিনারি টু রিভিল ইটস মিনিং অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স, এবং ইমেজারি টু রিভিল, এবং কী কী ইমেজারি ইউজ করা হয়েছে এবং এর মানে, এর অর্থ, এর গুরুত্ব, তাৎপর্য মানে বর্ণনা করার জন্য আমরা একে ব্যবহার করে থাকি, ঠিক আছে? নেক্সট আমরা চলে আসছি শিকাগো স্কুল। দ্য শিকাগো স্কুল অফ লিটারি থিওরি, অলসো known as Neo-Aristotelianism, was a prominent school at the University of Chicago in the 1930s and 50s. Chicago School of Literary Theory, also known as Neo-Aristotelianism, আমরা শিকাগো স্কুলকে আর কি নামে পরিচিত জানি, এটা একটু দেখে রাখতে হবে, চাওয়া যাইতেই পারে, বা অ্যাজ আ বেসিক নলেজ আমাদের রাখতেই হবে। was a prominent school at the University of Chicago, সালটা 1930 থেকে 50-এর মধ্যে। আর আমরা কি ফিগার কাকে কাকে দেখছি, আর.এস. ক্রেন, ওয়েন বুথ, রিচার্ড ম্যাকিওন, এলডন ওলসন অ্যান্ড নরম্যান ম্যাকলিন। নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষায় চাওয়া হয়, চাইতে পারে অবশ্যই, আপকামিং এক্সাম, নেট, ইউজিসি নেট, জেআরএফ, সেট, গেট এক্সামেও। দ্য শিকাগো স্কুল এমফাসাইজড আ ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ টু লিটারেচার। আমরা যখন কেমব্রিজ স্কুল পড়লাম তখন দেখলাম ওনারা ক্লোজ রিডিংয়ের দিকে, টেক্সটের দিকে এমফাসিস দিচ্ছেন, টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিসের দিকে, ক্লোজ রিডিংয়ের দিকে। এখানে আবার শিকাগো স্কুল কি করছে, ওনারা ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ, হোয়াট ইজ ফর্মালিস্ট, এটা আমরা যখন ফর্মালিজম পড়বো তখন জানতে পারবো ডিটেইলে। আর এটা কি করছে, শিকাগো স্কুল এমফাসাইজড আ ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ টু লিটারেচারের একটা ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচকে তুলে ধরে, জোর দেয়, বুঝতে সাহায্য করে। ফোকাসিং অন দ্য স্ট্রাকচার, ফর্ম অ্যান্ড আর্টিস্টিক হোলনেস অফ আ টেক্সট। একটা টেক্সটের স্ট্রাকচার কি, ফর্ম কি, গঠন কি, মানে স্ট্রাকচার, বর্ণনা, বিবৃতি, গঠন এবং আর্টিস্টিক হোলনেস, এবং পুরোপুরিভাবে এটা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে একটা আর্টিস্টিক বা একটা শিল্পকলা গড়ে উঠেছে একটা টেক্সটের, সেটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটা টেক্সটের ক্ষেত্রে, সেটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করে বা হেল্প করে। আর এই শিকাগো স্কুল কিন্তু সেটাকেই ফোকাস করে বা এমফাসাইজ করে। দ্যাট ইজ ইট। আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখতে পারতাম, কিন্তু আমি এটাকে একটু হিন্দিতে বলে নিয়ে ভিডিওটাকে অফ করছি। तो मुझे आप लोगों को यही कहना है। उससे पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टेस्ट लिटरेचर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करके इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एनर्जी दीजिए हमें, ताकि हम और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के, लड़ के अपनी ज़िंदगी में टिके रहें, और आप लोगों को हाथ में हाथ पकड़ के आगे लेकर जाएँ, खुद को भी आगे लेकर जाएँ, साथ में आप लोगों को भी आगे लेकर जाएँ। तो अभी हम UGC नेट एंड JRF जून 2025 इज़ आवर टारगेट। इंग्लिश लिटरेचर इज़ पेपर 2 इन UGC नेट एसेट एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे मैंने आज टेलीग्राम चैनल के नेम एंड लिंक नहीं लेकर आई, बहुत बता देती हूँ। SP लिटरेचर UGC नेट इज़ आवर टेलीग्राम चैनल नेम एंड लिंक https://t.me //UGC lit। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को पढ़नी है स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आज मैंने समझी कि कैम्ब्रिज स्कूल एंड शिकागो स्कूल थोड़े छोटे हैं, तो अगर बाद में जब हम डिकॉन्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तब हम एक एक करके एक दिन में हिंदी, एक दिन में बंगाली में कहेंगे उस दिन, क्योंकि बहुत कुछ समझने की चीज़ है। तो आज ये दोनों बहुत लेंदी नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ कितने व्यक्तित्व और कितने प्रोमिनेंट फिगर इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको याद रखने
रखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को लिए ये मैंने लेकर आई, तो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप लोग कैसे पढ़ेंगे इसको देखो और डू नॉट स्किप दिस वीडियो, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। कैम्ब्रिज स्कूल 1920 से 30s में हमें मिलते हैं। ये क्या है, एक ग्रुप स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। स्कॉलर मतलब जो बहुत विद्यावान और विज्ञान व्यक्ति है, मतलब जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस है, जिनको बहुत ज़्यादा पता है, उनको हम स्कॉलर कहते हैं। तो वो कैम्ब्रिज कुछ एक ग्रुप है जो कैम्ब्रिज स्कूल के साथ यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है और मतलब एक साथ है, इससे जुड़े हुए हैं। नोन फॉर देयर रिगोरस एंड ऑफन पोलेमिकल अप्रोच। ये यहाँ पे हमें इनके रिगोरस एंड ऑफन पोलेमिकल अप्रोच कहाँ पे टू टेक्सचुअल एनालिसिस एंड द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ये शिकागो स्कूल ये स्कॉलर को सपोर्ट करते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और इनके साथ जुड़े हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टेक्सचुअल एनालिसिस को और क्लोज एग्जामिनेशन लिटरेरी वर्क्स के क्लोज एग्जाम मतलब क्लोज रीड करने को, क्लोज एग्जाम को एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जाम मतलब कि परीक्षा निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ पे की फिगर्स हमें एफर लिविस, क्यू डी लिविस एंड विलियम एमसन वेर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द न्यू क्रिटिसिज्म। ये 3 प्रोमिनेंट फिगर न्यू क्रिटिसिज्म को, मूवमेंट को शेप करते हैं, एक आकृति इसको देते हैं, एक रूप दान करते हैं। विच एम्फासाइज्ड क्लोज रीडिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। जो एम्फासाइज करते हैं, जो फोकस करते हैं, जो दावा करते हैं कि क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं और टेक्स्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। जो टेक्स्ट वो एक लिटरेरी टेक्स्ट, इट डज नॉट मीन दैट कि लिटरेरी टेक्स्ट सिर्फ एक लिटरेरी एसे और लिटरेरी वर्क से है। मतलब टी.एस. इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस थिंग। तो सिर्फ टी.एस. इलियट के, वर्जीनिया वुल्फ के या फिर सिमोन द वीवर के या फिर एलन शोल्टर के एक लिटरेरी एसे और लिटरेरी वर्क को लेकर आए, दिस इज कॉल्ड लिटरेरी वर्क, नथिंग लाइक दैट। एक पोइट्री को भी वी कैन से इट्स अ लिटरेरी वर्क। एक नॉवेल को भी, एक शॉर्ट स्टोरी को भी, एक टेक्स्ट को भी हम कह सकते हैं। तो हम टेक्स्ट के एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोज एनालिसिस मतलब कि करीब आना। कैसे करीब आएंगे आप टेक्स्ट के करीब? ऐसे आएंगे कि हम टेक्स्ट के बारे में क्या पता चलेंगे, टेक्स्ट के हमें लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, उनके इमेज, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, क्या क्या है, इनके मीनिंग क्या है, इसके सिग्निफिकेंस, इसके तात्पर्य, इसके महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें समझना है। ये है न्यू क्रिटिसिज्म के काज। आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे हमने कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में बताया, फिर न्यू क्रिटिसिज्म कहाँ से टपक पड़े। दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटर रिलेटेड। सो आपको पढ़नी होगी, एक चीज़ पढ़ने से दूसरी चीज़ अपने आप आ जाते हैं। तो इसी तरह इस टॉपिक को भी आपको याद रखनी होगी। और न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट सेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो न्यू क्रिटिसिज्म हम अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज रीडिंग एक की टर्म हमें मिले है, की कंसेप्ट, तो इसको भी समझनी है। द कैम्ब्रिज स्कूल प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन क्लोज रीडिंग। ये कैम्ब्रिज स्कूल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फासाइज कर रहे हैं, जो दावा करके कह रहे हैं ऑन क्लोज रीडिंग के ऊपर उनके भरोसा है। मेटिकुलसली एनालाइजिंग द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो करते हैं टेक्स्ट के स्ट्रक्चर क्या है, गठन क्या है, लैंग्वेज, भाषा क्या यूज़ की है, इमेजरी क्या क्या यूज़ की है, और इसके टेक्स्ट के महत्व क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, इसको समझ में हेल्प कर रहे हैं न्यू क्लोज रीडिंग। और यहाँ पे ही हमें कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स को मिल रहे हैं, वो लोग इसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और एम्फासाइज कर रहे हैं और इसी के बारे में बातें बोल रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी ऑल्सो नोन एज न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म। आपको ये नाम याद रखनी है कि शिकागो स्कूल को हम और किस नाम से जानते हैं, न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म। जब आपको यहाँ पे एरिस्टोटल से बातें मिले तब आपको सर्च करनी चाहिए व्हाई इट इज न्यू एरिस्टोटेलियनिज्म, बिहाइंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, ये इसके पीछे कहानी क्या है, इसको तो थोड़ी खुद से गूगल करके पढ़नी है। was a prominent school at the University of Chicago in the 1930s and 1950s। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1930 से 1950 के 50 में हमें ये देखने को मिल रहा है ये स्कूल को, ग्रुप को। और की फिगर्स यहाँ पे R.S. क्रेन, वेन बूथ, रिचर्ड मैकियन, एल्डन ओल्सन एंड नॉर्मन मैकलिन। दीज आर परमानेंट फिगर ऑन इन दिस कैटेगरी और इन दिस स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ओके, इन लिटरेरी थ्योरी। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द शिकागो स्कूल एम्फासाइज्ड अ फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। जहां आप देख रहे हो कैम्ब्रिज स्कूल क्लोज रीडिंग
न्यू क्रिटिसिज्म एंड टेक्सचुअल एनालिसिस के बारे में फोकस कर रहे हैं। जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो क्लोज रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वही टेक्स्ट के एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, वही कैम्ब्रिज स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ग्रुप के स्कॉलर्स भी वही उसी चीजों से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप शिकागो स्कूल पढ़ रहे हो, वो लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर एम्फासाइज्ड अ फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। वो लोग लिटरेचर के फॉर्मलिस्ट अप्रोच को फोकस कर रहे हैं, एम्फासाइज कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज फॉर्मलिज्म, व्हाट इज फॉर्मलिस्ट, ये बाद में हम समझेंगे जब अलग से फॉर्मलिज्म को पढ़ेंगे। ओके, फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड आर्टिस्टिक होलनेस ऑफ अ टेक्स्ट। ये फॉर्मलिज्म किस कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, 2 3 4 की पॉइंट याद रखिए। फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर गठन क्या है, फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म का लगभग एक ही बात बोल रहे हैं कि गठन क्या है, परिधि क्या है इसके, एंड आर्टिस्टिक होलनेस मतलब कि शिल्प कलाएं जो है, कला जो है, कल्चर जो है, ये कैसे इसको पूरा कर रहे हैं एक टेक्स्ट में, ये बात कर रहे हैं शिकागो स्कूल। और ये फॉर्मलिज्म कह रहे हैं और ये फॉर्मलिस्ट अप्रोच है और ये लिटरेचर में कह रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। आई होप you understand. If you have any kind of queries and doubts, please comment on the comment section below, and do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit the bell icon so that you never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যদি মনে হয় কার্যকরী বা পরবর্তীতে হেল্প করতে পারে। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে শেয়ার, কমেন্ট এবং লাইক করে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি, ইন্সপিরেশন, মোটিভেশন দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারেন বা পারো, এবং আমরা একত্রিত হয়ে একে অপরের হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে এগিয়ে যাব জীবনে। পড়াশোনার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের ক্ষেত্রের জন্য, বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রের জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারি একসাথে। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন एसपी लिटरेचर। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। सभी को नमस्ते, शिवरात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे, दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहिए। ओके, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, একে অপরের খেয়াল রাখুন, নিজেরা এগিয়ে যান, সঙ্গে আরও দুজনকে পারলে এগিয়ে নিয়ে যান, এতে কোনো ক্ষতি নেই, ভালোই হবে। নমস্কার, ধন্যবাদ।